ऐसे ही खबर आई है, आप देख सकते हैं शिकागो का ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर इस वक्त जोर शोर से नाच गाना हो रहा है। ओबामा के नाम के नारे लग रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है ओबामा के सबसे बड़ी फैन। सो फाइनली ओबामा हैज वन। Finally, Obama has won. You got it. You got it. You are happy? Oh, we're all happy. It's America, guys. And what do you expect from him? What do you expect from him? I expect a lot of great things. It's America. Everything here is great. And I just hope to keep our country moving forward. They will contribute for America. और आप देख सकते हैं इनके बैजेस जिनको लेकर आई हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है I was there प्रेसिडेंट ओबामा, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू वोट अगेन एंड मेड इन USA BarackObama.com। तो ये बता रहा है इस वक्त रंग शिकागो का। आगे चलते हैं, इस भीड़ के अंदर चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं। सो ओबामा हैज वन, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? Well, I had to call my mom and tell her all the progress we made in the country is going to stay and we're going to keep getting to move forward. But that was the first thing I had to do after yelling was call my mom and say, yes, we're going to keep everything we've got. Better health care, rights for women, everything else is staying on the table. We're going to keep moving forward. Keep forward, keep America forward. ये कहना है लोगों का। यहाँ पर रंग देख सकते हैं आप किस तरीके से इस वक्त 4 more years की तख्ती यहाँ पर है बराक ओबामा के लिए। 4 years for Obama again. So you're happy Obama is going to get... Very happy that he won. 4 Very years, baby. Woo! What do you expect him in next 4 years? I expect him to get us out of the same things that we were going into whenever he first came election. What do you expect from Obama in next 4 years? I'm very excited. I expect for him to do lots of big changes. I'm very excited. I love my president. What kind of changes do you expect? I'm looking for equal rights for women even more, and I'm looking for great things for education and the economy, and I believe in him. You believe in him. तो यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ बताइए क्या? What do you say? What do you think about President Obama winning again? What's that? What is your first reaction of Obama winning again? Yeah, I'm really glad he's winning again. He's getting another chance. I trust Obama. I was here because we trust him. We believe in this country. Obama's the man, all right? Obama's cool. Because of Obama, I'm staying in school. I stay in school because of Obama. Go Raiders! Go Raiders! Yeah! तो यहाँ आप देख सकते हैं बराक ओबामा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से ओबामा के समर्थन में अपने सर पर पट्टियां लगा रखी हैं। और यहाँ पर भी कुछ शख्स मौजूद हैं। 11-6-12। What is this message about Obama? ओबामा यही शब्द सुनाई दे रहा है। Why you are supporting Obama? Oh my God, because he's just like, I'm a Latina, I'm a woman, and he supports my rights. What? And what do you support Obama? Well, because he's a great president and he does really good on foreign policy, so... I support Obama because he has good morals. He's a good person at heart, and he's going to do great things for America. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट्स भी लगे हुए हैं ओबामा के। ये देखिए ओबामा को लोग अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। From where you have got it? We support Obama because he cares about women's rights and issues for students. Go Obama! I support Obama because I want to fall in love one day, and I want it to matter when I fall in love one day. तो देख सकते हैं आप शिकागो में जीत का रंग यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि ओबामा को लेकर लोग कितने आशान्वित हैं। दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ओबामा ने यहाँ पर लोगों के अंदर उम्मीद जगाए रखी है। जैसा कि अभी किशोर ने कहा था कि ओबामा ने ट्विटर पे लिखा है कि ये हम सब लोगों का साझा प्रयास था। इसी प्रयास की झलक यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। लोगों में भयानक उत्साह है। धीरे धीरे बारिश हो रही है। तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है शिकागो में। बेहद बर्फीली और सर्दीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद
लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने के लिए इकट्ठे हैं और ये बताता है कि ओबामा को लेकर किस तरह की फैन फॉलोइंग कम से कम शिकागो और अमेरिका के बड़े हिस्से में मौजूद है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 80% लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो युवा हैं और ओबामा ने कहीं ना कहीं युवाओं को आगे नारे का दिया था। उन्होंने कहा था यस वी कैन, और यस वी कैन की वही चीज दिखाई दे रही है शिकागो के अंदर। और शिकागो का माहौल इस वक्त बताता है, शिकागो का मूड इस वक्त बताता है कि पूरे अमेरिका का मूड क्या होगा। दरअसल अपने इस टूर के दौरान मैंने जितने लोगों से बात की सबने कहा ओबामा ओबामा ओबामा, और वही बात अभी हमें सुनाई भी दे रही है, दिखाई भी दे रही है। ओबामा का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। बच्चे भी यहाँ पर बोल रहे थे ओबामा। यू सपोर्ट ओबामा? Yeah, व्हाई? because he's a great president. He's a great man. I look up to him when I get older. You look up to him? Yeah, I do. When you are shouting Obama, Obama in a very specific way, say it again. Yeah. Say it again, Obama. 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 Obama! Obama! Yes! As you can see, we support Obama. It's a wonderful day in Chicago. It's a wonderful day in the United States. वंडरफुल डे इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये कहना है लोगों का। लोग बेहद खुश हैं। शिकागो वैसे तो गृह राज्य है बराक ओबामा का, लेकिन अगर ये कहा जाए, ये बताया जाए कि पूरे अमेरिका के अंदर कहीं ना कहीं ओबामा को लेकर आशा मौजूद है, तो फिर ये गलत नहीं होगा। हम चलेंगे हमारी सहयोगी मधु भाटिया झा के पास जो हमारे साथ मौजूद है। मधु, क्या कहा जाए और क्या देखा जाए और क्या माना जाए? क्या अब ये लगभग तय हो गया है कि बराक ओबामा बनेंगे? क्योंकि अभी तक हम प्रोजेक्शंस की बात कर रहे थे। जी नहीं, अब लगभग पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि बराक ओबामा ही अगले प्रेसिडेंट हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि इतने बड़े स्केल पे प्रोजेक्शन करना मतलब कॉन्फर्मेशन है कि बराक ओबामा अगले राष्ट्रपति हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बहुत दिलचस्प बात है कि वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक रिसेशन अमेरिका में आया था। उस समय राष्ट्रपति जो बने थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो ही एक इकलौते राष्ट्रपति रहे हैं जो इतने भारी इकोनॉमिक रिसेशन के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उस साल के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो इतने भारी रिसेशन के बावजूद दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए है। बहुत बड़ी जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए है। अगले 4 साल का रास्ता कठिन होगा ओबामा? बिल्कुल बहुत कठिन है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल अभी उनके सामने ये है कि दिसंबर 31 तक, मतलब ये साल खत्म होने तक से पहले उनको एक नया रिफॉर्म लाना है। क्योंकि जो अभी तक बजट कट और टैक्स कट चल रहा है वो एक्सपायर हो जाएगा साल खत्म होने से पहले। तो अगर उसमें नीति में फेरबदल नहीं किया गया, कोई नया पॉलिसी नहीं निकाली गई जिसके लिए उनके पास समय नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी को मनाना पड़ेगा उन्हें, वो अगर नहीं हुआ तो फिर नया साल शुरू होते ही क्लिंटन एरा का जो टैक्स कट है वो लागू हो जाएगा, जो अभी के टैक्स कट से काफी ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो अगले 2 महीने के अंदर बराक ओबामा को झेलना है और रिपब्लिकन पार्टी से अपनी पॉलिसी मनवानी है। मधु, अगर हम भारत के संबंधों और डेमोक्रेट्स और बराक ओबामा के संबंधों की बात करें तो अगले 4 साल के लिए भारत और अमेरिका के संबंध किस तरफ जाते हुए देखती हैं? देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं अब अगले 4 सालों में कहीं ना कहीं पर ऊपर नीचे होगा, क्योंकि बराक ओबामा के बारे में हम जानते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर या फिर जैसे कि आउटसोर्सिंग को लेकर वो काफी कड़ा रुख अपना रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका में जॉब्स आए और यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करी जाएं। तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं पर जो इंडिया में जॉब्स है उस पर असर पड़ सकता है। कितने बड़े असर पैमाने तक पड़ेगा वो अभी कहना साफ नहीं है, लेकिन पूरा जो उनकी पॉलिसी भारत को लेकर है चाहे पाकिस्तान को लेकर है वो सब पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, बहुत क्लोज नजर रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, जॉब्स कट की बातें हैं, उन दोनों के मद्देनजर बराक ओबामा को सबसे पहले आकर क्या करना पड़ेगा ताकि उम्मीद जागी रहे? जॉब कट्स के लिए सबसे पहले उनको यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। उसी के लिए चाहे ये आउटसोर्सिंग का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके बेल आउट जो उन्होंने किया था उनमें नई जॉब्स क्रिएट करनी हो, वो सब पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही टैक्स को कट करना है, जो इतना बड़ा भारी डेट इस समय अमेरिका के ऊपर है उसको कम करना है। तो उसको लेकर वो भी फेरबदल कर रहे हैं। जब तक वो नहीं काम करेगा, टैक्स कट कम नहीं होंगे, तब तक जॉब्स क्रिएट करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनको जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसमें ओबामा को लगातार काम करना पड़ेगा अगले उनको जनवरी में ऑफिस लेने से पहले ही। अच्छा, ये बताइए मधु, हम शिकागो में हैं, हमसे कुछ किलोमीटर दूर
बराक ओबामा भी हैं, आज वो शिकागो के अंदर ही मौजूद हैं। क्या कर रहे होंगे इस वक्त जब लगभग ये तय ही हो गया है कि बराक ओबामा ही अगले राष्ट्रपति? इस समय सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यह है कि वो बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। ये इलेक्शन जो है बहुत ज्यादा टेंशन से भरा हुआ, बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर का, बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत मेहनत लगी है इस इलेक्शन में। आखिरकार ये रिजल्ट सामने आया है कि बराक ओबामा अगले राष्ट्रपति हैं, तो उनके लिए ये इस समय बहुत बड़ा एक तनाव उनके दिमाग से हटा है। उसके अलावा अब उनका पहला कदम जो है, ना सिर्फ अपने सपोर्टर्स को बाहर आकर धन्यवाद देना है, यहाँ पर आकर जितने शिकागो में मौजूद हैं उनको आके मिलना है, थैंक यू देना है। इसके अलावा अपनी जो स्पीच है उस पर अभी वो तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी वक्त अब ओबामा बाहर आकर अपने हेडक्वार्टर्स में जहां पर मौजूद हैं वहां पर आकर लोगों को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और अपने आगे के 4 सालों के लिए रीइलेक्ट होने के लिए ना सिर्फ धन्यवाद देंगे पर भरोसा जताएंगे कि आपने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की। भरोसा जताएंगे आपने मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की। क्या कारण है कि 4 साल बाद भी बराक ओबामा का जादू बरकरार है, या ये कहें तेरा जादू बराक ओबामा फिर से चल गया? जी, बराक ओबामा की सबसे बड़ी खासियत यही कहेंगे। मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे, मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे कि किस तरह से एक बार फिर से विक्ट्री सेलिब्रेशन शिकागो की गलियों में, शिकागो की सड़कों पर शुरू हो गया है। चारों तरफ उठते हुए हाथ ये बता रहे हैं कि बराक ओबामा अब भी कितने पॉपुलर हैं। और यहाँ पर फिर से बिकने लगे हैं बराक ओबामा के बैज, यहाँ पर फिर से बिकने लगे हैं बराक ओबामा के बैज, और बड़ी संख्या में लोग इन बैजेस को खरीद रहे हैं। दिखाता है, बताता है कि आखिरकार कितना बड़ा सपोर्ट बराक ओबामा के लिए शिकागो में है, अमेरिका में है, अमेरिका की जनता में है। और कहीं ना कहीं ओबामा का जादू चला है, ये इंडिकेट करता है उनका फिर से रीइलेक्ट होना।